Welcome to this class of political science, and this is going to be our fifth lecture. And today we are going to talk about the approaches to the study of political science. Means आज हम ये पढ़ेंगे कि political science को हम किस नजरिए से देखते हैं. Okay, basically whenever you are studying any subject, there are always certain approaches. Approaches means the way you are looking at something. Okay, तो आज हम political science को हम किस नजरिए से देखते हैं and what are the different aspects or perspectives of looking at political science, that is what we are going to study today. So जो आज का हमारा lecture है इसमें हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि what is an approach. When we say that we are going to study the approaches to the study of political science, we will try to understand what is an approach, and in this we will try to understand, इसमें हम ये समझेंगे कि how approach is different from method. Why? क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं बहुत जगहों में हम अप्रोच और मेथड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों जो वर्ड्स है अप्रोच एंड मेथड, these are two different words. Or when we will be able to understand how they are different, it will make us to have a better understanding of the word approach. Okay, or within this also we will try to understand the different approaches, especially when we study this subject, that we have traditional approach and the modern approaches. Okay, basically broadly whenever we study this subject, we have this broad distinction between the traditional approaches and the modern approaches. And traditional approaches जिसे हम normative approaches भी कहते हैं. Okay, and on the other hand modern approach we call it as the empirical approach also. Okay, तो ये चीज हम पढ़ेंगे. And finally in this lecture we will try to understand what are the different traditional approaches or normative approaches, जिसमें हमारे पास philosophical approach है, we have historical approach, and we have legal institutional approach. Okay, and after that we will try to understand what are its limitations and what led to the coming of the modern approaches. Okay, so let's start with what is an approach and how it is different from the method. देखो, जब भी हम social sciences पढ़ते हैं तो social sciences में स्टडी करने के दो मेन तरीके होते हैं. ओके, मीन्स whenever we study social sciences there are two ways of inquiry. Okay, this is very important word, inquiry. Okay, so when we study we either use the method or we use the approach. Okay, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेथड क्या होता है. मेथड as it is written here, it is a particular way of doing something or it is a particular way of looking at something. Okay, जैसे हमने अपने लास्ट क्लासेस में, जब लास्ट क्लास थी हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस किया था, तो उसमें हमने नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में वी डिड द जनरलाइजेशन, और उस जनरलाइजेशन में वी यूज्ड इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. ओके, सो दैट वाज द मेथड बट दैट वाज नॉट द अप्रोच. ओके, सो the method basically talks about how to inquire. Means जैसे मैंने आपको बोला कि inquiry is a very important thing, तो method talks about how to inquire and what are the procedures for getting and using the data. जो भी हमारे पास relevant data है, available data है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, that is method. Okay, लेकिन जो method है वो उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग है या उसका जो स्कोप है या उसका मैं बोल रहा हूं उसका जो एस्पेक्ट है, दैट इज नैरो व्हेन वी कंपेयर इट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रोच. अप्रोच में क्या है, अप्रोच इंक्लूड्स मेथड आल्सो. अप्रोच में मेथड भी आता है. इन एडिशन टू दैट अप्रोच आल्सो टेल अस व्हाट टू इंक्वायर, कि हमें इंक्वायरी किस चीज की करनी है. ओके, एंड विद इन दिस we also try to select the problem and the relevant data. जैसे हमने यहाँ पे भी बात किया था ना कि how getting the data, लेकिन जो हमारे पास available data है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना. Okay, that is the scope of the approach.
एंड अप्रोच हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज ए बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ ए लेंस, एंड व्हाट लेंस वी आर वेयरिंग, ओके, टू लुक एट समथिंग, सो दिस इज व्हाट द अप्रोच इज। अब जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास कौन सा लेंस होगा, हाउ डू वी आर लुकिंग एट समथिंग। तो व्हेन वी आर सेइंग दैट वी हैव अ ट्रेडिशनल अप्रोच, देन वी हैव philosophical method, then we have historical method, then we have legal institutional method, okay, and when we जब हम ये कहते हैं कि we have the modern approaches, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या मेथड होगा, we have scientific method, we have empirical method, we can have comparative method also, okay, so this is how we understand what is approach and what is a method, and what is traditional and what are modern approaches, okay. So after having the understanding of what is an approach and what is a method and how do we differentiate approaches and method, we will try to understand what is a traditional approach and what are modern approaches. How do we differentiate between modern approach and how do we understand traditional approach, okay? तो यही हम इसके अभी बात कर रहे हैं, अभी करेंगे। देखो बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस, इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट, अगर हम इतिहास पे देखें पॉलिटिकल साइंस के, तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है वो मोर और लेस इसी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। अगर हम एंशियंट टाइम में जाएं, जब प्लेटो एंड एरिस्टोटल का टाइम था, या हम मिडिवियल टाइम्स में आए, या इवन इन द मॉडर्न टाइम्स आल्सो, वी हैव रिलाइड सो मच ऑन द ट्रेडिशनल अप्रोचेस, और स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी हैव shifted more towards the modern approaches, okay. हमारा जो ज्यादा फोकस है, वो ज्यादा फोकस रेलेवेंस किसके ऊपर हुआ, मॉडर्न अप्रोचेस के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस डज नॉट मेक एनी सेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। ट्रेडिशनल अप्रोचेस आल्सो हैव सम रेलेवेंस, बट मोर इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू द मॉडर्न अप्रोचेस, ओके। तो अभी हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन, कि जब हम ये बोल रहे हैं कि हाउ डू वी इंक्वायर, और जो इंक्वायरी है पॉलिटिकल साइंस में, ट्रेडिशनल अप्रोचेस किस तरीके से इंक्वायरी करते हैं और मॉडर्न अप्रोचेस किस तरीके से इंक्वायरी करते हैं, ओके। देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है ये बेसिकली किसके ऊपर वर्क करते हैं, वैल्यूज के ऊपर। जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस आर आल्सो नोन एज द नॉर्मेटिव अप्रोचेस। और नॉर्मेटिव अप्रोचेस use which methods, philosophical method, historical method, legal institutional method। तो ये सारे methods हैं, they are more or less based on values, okay। और इनका जो study करने का जो method है, that is actually based on the values। और जब वो values के ऊपर बात करते हैं, they basically try to give the understanding of what ought to be and should be। या कोई भी phenomena या कोई भी हम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस ट्राई टू गिव ए आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ और द आइडियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। आइडियलिस्टिक मींस समथिंग व्हिच आर इम्बाइब मोर इन द आइडियाज। और जो ये बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा हो सकता है, ओके, समथिंग व्हिच इज नॉट इन रियल, जो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में नहीं है, ओके। सो it talks about ought to be and should be, but on the other hand, अगर हम other hand में हम अगर modern approaches को देखें, they basically talk about the facts and the empiricism, means they are talking more about the facts and the data। और ये किसके ऊपर बात करते हैं, it is so। अगर कोई भी हम phenomena की बात करें, तो वो basically ये बात करते हैं कि actual में ground reality क्या है, okay। इसके अलावा जो नेचर है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का, दे आर मोर और लेस बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंड दे आर मोर और लेस क्रिटिकल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। क्रिटिकल का मतलब दे ट्राई टू गिव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ, और दे ट्राई टू गिव ए अदर साइड ऑफ द व्यू आल्सो, मींस दे ट्राई टू गिव ए क्रिटिकल लुक एंड दे ट्राई टू गिव ए प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब दे ये बोलना क्या हो सकता है, मींस इट्स काइंड ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, ओके। So that's what is the nature of the traditional approaches, but on the other hand modern approaches की
क्या नेचर है, दे आर मोर और लेस साइंटिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव, कि उनके जितने भी उसका जो नेचर है, मींस नेचर का मतलब है उसका जो एक बेसिक वे ऑफ वर्किंग है, दैट इज साइंटिफिक, एंड आफ्टर हैविंग ए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इट ट्राइज टू डिस्क्राइब द थिंग्स और डिस्क्राइब द फिनोमिना, एंड आफ्टर दैट जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है, ठीक है, दे आर बेस्ड मोर ऑन स्पेक्यूलेशन, okay, they are more or less they are based on speculations कि क्या हो सकता है, okay, and on the other hand the modern approaches they talk more about the sense experience and logic, okay, कि सेंस एक्सपीरियंस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आप जाओगे तो वो आपको क्लियरली समझ आएगा कि सेंस एक्सपीरियंस क्या है, वो वाला एक्सपीरियंस दैट वी डू थ्रू आवर 5 सेंसेस एंड बेस्ड ऑन लॉजिक, ओके, एंड फाइनली जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है दे फोकस मोर ऑन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। देखो जैसे मैंने यहां पे बताया, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज बेसिकली इट इज समथिंग व्हिच गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मींस क्या सही है क्या गलत है, ओके। तो दैट्स व्हाट गिव्स दैट इज व्हाट द ट्रेडिशनल अप्रोचेस गिव्स अस अ सेंस ऑफ सोसाइटी में कि क्या गलत है क्या सही है, और जो वो सही है या गलत है वो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, ओके, मींस सब्जेक्टिव का मतलब है इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो एक पर्सन के लिए सही है वो दूसरे के लिए क्या पता सही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, कि अगर हम अभी भी कुछ रूरल एरियाज में या बैक एरियाज में चले जाएं, वहां पे अभी भी वीमेन को लेके दे हैव ए सर्टेन अंडरस्टैंडिंग कि उनको ये पहनना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, इस टाइम पे निकलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। सो दैट इज देयर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ओके। और जो उनकी ये सेंस है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर, सो दैट्स व्हाई दैट इज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट सर्टेन थिंग्स, ओके। बट ऑन द अदर हैंड जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं वो किसकी बात करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स, कि क्या राइट सही है और क्या गलत है, व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स। सो दिस इज हाउ we can differentiate between the traditional approaches and the modern approaches। इसके साथ साथ जो बेसिकली जो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस है ना, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी दे आर मच मोर इन फोकस, बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्कमस्टांसेस हुए, उस टाइम बहुत सारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स थे, दे केम इनटू द लाइमलाइट। Means why they came into the limelight? Because they could not do what they were supposed to do। जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर सके, और वो उनको क्या करना चाहिए था? जैसे हमने पॉलिटिक्स में, जब हम पॉलिटिक्स का जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने, यू रिमेंबर, हमने लास्ट में बोला था द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स इज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सो दैट्स व्हाई these subjects, the subjects in the social sciences, they came more in the limelight। Okay, so that's why there came the modern approaches. Or modern approaches, it started talking about the facts, it started talking about the scientific sense, experience, logic, and what is true and what is false. So now let's try to understand the different traditional approaches to the study of political science. So we have 3 main approaches, और वो कौन-कौन सी हैं? We have a philosophical approach, we have historical approach, and we have legal institutional approach। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, कि हम बात करते हैं कि फिलोसफिकल अप्रोच क्या है। तो फिलोसफिकल अप्रोच के ऊपर बात करने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ब्रीफ व्हाट इज फिलोसफी। बेसिकली फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट इंक्लूड्स नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज, ओके। तो दिस इज हाउ वी कैन हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज फिलोसफी। So when we are saying we are applying the philosophical approach, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? We are basically trying to use different aspects of philosophy। और philosophy basically करता क्या है? Basically philosophy is the study of the study, जो पढ़ाई की पढ़ाई करना, okay? जैसे हम बोलते हैं कि we have MPhil और PhD, so that is doctorate in फिलोसफी, एमफिल, मास्टर्स इन फिलोसफी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्टडी को फिर स्टडी कर रहे हैं, ओके, दैट वी कॉल एज रिसर्च आल्सो। सो हियर
we can say that philosophical approach, it presents the idea of good society. देखो when we say the traditional approaches, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया, और we say that they provide an idea of a good society, and that society, good society, it means it tries to give an idealistic understanding, or it gives an idealistic view of idealistic perspective कि what should be a good society, what ought to be a good society. Okay, so more or less it is based on values. Okay, so that's why this approach is also called value laden approach. Okay, besides this, this philosophical approach also talk about it has a prescriptive nature. Means ये बोलती है कि अगर सोसाइटी कोई गुड सोसाइटी बनाना है तो क्या क्या चीजें हैं जो चाहिए. देखो पॉलिटिकल साइंस की मोर और लेस फोकस क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. ओके, और स्टेट एंड गवर्नमेंट में इट मींस हाउ ए सोसाइटी कैन बी ए गुड सोसाइटी. ओके, तो वो कैसे होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल मेथड्स, एंड दैट इज व्हाई जो ये अप्रोच है इट हैज ए प्रोरे मेथड. एप्रोरे मेथड का मतलब क्या हुआ कि समथिंग विच हैज ए प्री कंसीव्ड नोशंस. प्री कंसीव्ड नोशंस का मतलब क्या हुआ कि ये अप्रोच है, इट हैज, इसका एक अपना ही एक अंडरस्टैंडिंग है. मींस जैसे जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि जैसे हमने डिडक्टिव मेथड की जो बात किया था, तो डिडक्टिव मेथड, इफ यू रिमेंबर, वी सेड डिडक्टिव इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, कि वी हैव ए जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड देन वी put it and implement into a particular aspect or a particular phenomena. तो जो ये general understanding है वो उसका क्या मतलब है कि we have a priori notion, means we have a prejudice, means we have a prejudgment कि ये चीज कैसी हो सकती है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी जैसे जो हम अभी a priori मेथड की या डिडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, तो डिडक्टिव मेथड में हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग है कि सारे जो रेड एप्पल्स हैं वो मीठे होते हैं. ओके, तो दिस इज ए डिडक्टिव मेथड. वी हैव ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑल द रेड एप्पल्स आर गोइंग टू बी स्वीट. लेकिन क्या ये हमेशा होगा कि क्या सारे ही लाल एप्पल मीठे होंगे? कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मीठा ना हो. ओके, सो दिस इज व्हाट द डिडक्टिव वे ऑफ looking at something. Okay, so this is deductive, and then it is based on speculations and norms, intuitions and logic. Okay, so this is how the philosophical approach tries to give an understanding of the subject, and finally this approach is more or less subjective in nature. Subjective का मतलब क्या है कि इसकी universal validity नहीं है. Means you cannot say that if we try to give an understanding, we cannot say कि ये हर एक चीज के ऊपर implement होगी. Okay, so this is what the philosophical approach is. Okay, that is something based on, that is a value laden approach. Okay, अब और जितने भी जो हमारे पास political thinkers हैं, okay, they are more or less we call them as a political philosophers also. Okay, so that's why this approach is important for us. After the philosophical approach we have the historical approach. देखो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री more or less it is the study of past. Okay, लेकिन सारा जो पास्ट है वो हिस्ट्री नहीं है. कौन सा पास्ट हिस्ट्री है? वो वाला पास्ट हिस्ट्री है जिसका एक कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस हो और जिसका कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस हो. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा इतिहास जिसने ज्यादा लोगों के ऊपर असर डाला हो, दैट्स व्हाट मेक्स एज ए हिस्ट्री. ओके, सो नाउ हिस्टोरिकल अप्रोच इट स्टडी हिस्ट्री एज ए पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एज ए प्रेजेंट हिस्ट्री. तो ये कहता है कि जो प्रेजेंट में पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं वो इट विल बिकम इट इज ए पास्ट हिस्ट्री. ओके, सो बेसिकली इट इज ए प्रेजेंट हिस्ट्री. ओके, सो दिस अप्रोच जो ये हिस्टोरिकल अप्रोच है ये एवोल्यूशनरी अप्रोच भी है. अभी एवोल्यूशनरी अप्रोच कैसे है? एवोल्यूशनरी का मतलब हुआ कि विच इज इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. और जो हिस्टोरिकल अप्रोच भी है वो जब वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है या वेरियस गवर्नमेंट्स को या स्टेट को अंडरस्टैंड करता है,
तो उसमें क्या करता है कि वो इट ट्राइज टू स्टडी विद द पैसेज ऑफ टाइम कि उस ईयर में क्या हुआ था, फिर से वो जैसे आप अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री, व्हेनेवर वी स्टडी हिस्ट्री वी ट्राई टू हैव ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेट्स, और किस किस तरीके से कैसे कैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो डेवलप हुए हैं। और इवन कि हम कभी भी कोई भी स्टेट की बात करें या कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें, वी ऑलवेज टेंड टू गो इनटू द पास्ट, द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोमेना, एंड without going to the past we cannot have a proper political understanding of that phenomenon. So that's what we call, and even the thinkers like Machiavelli, Aristotle, Seeley, there are so many other thinkers also. These are very important thinkers. Okay, we have George Sabine also. They have used the historical approach to give a better understanding of the subject of political science. Okay, so this was the historical. Historical, it is an evolutionary approach that talks about that is based on the observation of the historical happenings. Okay, and how the various political institutions, the various governments and state have evolved with the passage of time. Okay, finally we have the legal institutional approach. अब देखो ये legal institutional approach क्या है? देखो, legal means something which is related with the law, okay, and institution is something that is related with the institutions of the state. अब ये जो legal approach है ये कैसे understand करती है? Legal approach जो है it tries to give an understanding or it tries to bring the framework of the constitutions, और कैसे जो अलग अलग देशों के constitutions हैं वो किस तरीके से उनके जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसको किस तरीके से उसको चैनलाइज करते हैं. ओके, हाउ इट ट्राइज टू शेप द पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ द स्टेट. ओके, सो इन द लीगल इंस्टीट्यूशनल वी हैव द लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन द वर्किंग ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और किस तरीके से जो स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं या जैसे वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, okay, how they are functioning. Okay, that's what the legal approach does. Or legal approach में we try to understand the political phenomena through the lens of constitutions or through legal frameworks. So this is the legal approach. And finally we have the institutional approach. Basically कोई भी स्टेट में उसकी फंक्शनिंग में उसके इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल होता है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वी हैव पब्लिक सर्विस कमीशंस, वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, वी हैव फाइनेंस कमीशन, ओके, देयर आर सो मेनी कमीशंस. तो दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशंस, और ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो एक स्टेट की फंक्शनिंग में रोल प्ले करते हैं. And in the absence of these institutions, it is not possible for any state to function. And the functioning of these states means state institutions organized under law and constitution and the role of law. Finally, let's try to understand what are the different limitations of these traditional approaches. और क्या इनकी limitations रही that led to the coming of the modern approaches. So first we can say that these are narrow. The horoscope or the way it is looking at certain things, it is narrow. Okay, why it is narrow? Because it is more or less based on values only, and it is not talking about the scientific methods, the facts. Okay, on the other hand, it is idealistic, and when we say something which is idealistic, और जब हम बोलते हैं कि ये आइडियलिस्टिक है, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक. वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है? वो इसलिए कि अगर हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोचेस की हिस्ट्री पे जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंटर वॉर पीरियड्स आए, तो उस टाइम पे भी साइंटिफिक अप्रोच का नहीं इस्तेमाल किया गया. उस टाइम पे भी सोचा नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द राइट वे, और दैट लेड टू द happening of the second world war. Okay, so that's why
दिस इज द प्रॉब्लम विद द आइडियलिज्म, दैट इट टॉक्स अबाउट, ये सिर्फ ये बात करता है कि क्या होना चाहिए, कैसा हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं करता कि क्या एक्चुअली में सिचुएशन है, कंडीशन है. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो अदर इफ वी लुक एट द हिस्टोरिकल अप्रोच, तो हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री, इट इज गुड टू हैव, कि इसका ये अच्छी बात है कि हम हिस्ट्री की नॉलेज लें प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो हम हिस्ट्री से नॉलेज लें दैट विल ऑलवेज वी कैन इम्प्लीमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फिनोमेनास. ओके, इसके अलावा ये अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इट इज मोर और लेस डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, और ये किसको इग्नोर करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर को. ओके, कि हाउ द पीपल बेसिकली बिहेव. इन एडिशन टू दिस, ये स्टेट की बात करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, फिलॉसफी की, हिस्ट्री की, लीगैलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे या इंडिविजुअल्स के ऊपर या ग्रुप्स के ऊपर, उसके ऊपर बात नहीं करता ये वाली अप्रोच. तो इसलिए दिस इट गिव्स ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसमें आपको एक, ये बोलते हैं कि एक माइन्यूट जो नॉलेज चाहिए, पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए, वो इसमें मिसिंग रहता है. ओके, और इन एडिशन टू दैट, दिस अप्रोच आल्सो इग्नोर्स द एक्चुअल पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द पॉलिटिक्स. So these are the limitations of this approach, and I hope you have understood जो हमने इस लेक्चर में बात किया, what is what is approach, what is method, and how they are different from each other, and what are the traditional approaches, and what are the different traditional approaches, and what are the limitations of the traditional approaches. Thank you.